गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हमारे लीगल चर्चा में कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल इशू पे डिस्कस करते हैं। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे केस पे, पर्टिकुलर प्रैक्टिकल केस और ज्वलंत मुद्दा, और वह मुद्दा है हमारे अरविंद केजरीवाल के केस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जो अरविंद केजरीवाल के जो केसेस है, बैकग्राउंड ऑफ द केस, controversy began with the Delhi excise policy, that is 21-22, आप सब जानते हैं, which was later scrapped, and allegations of irregularities, irregulations and licensing under benefit to private parties, kickbacks and money laundering agencies involved. And Central Bureau of the Investigation, that is CBI, predicted offense, and later on the Enforcement Director ED, money laundering under the Prevention of the Money Laundering Act PMLA, registrations of cases and early proceeding, CBI registered FIR, foundations of the criminal cases, ED initiated ECIR enforcement case, informations report, several arrests followed ministers, businessmen and intermediaries. All these stage courts mainly dealt with bail petition, summon challenges and custodial interrogations issues. तो जब ईडी सीबीआई के केसेस हो गए, अरेस्ट हो गए, हमारे केजरीवाल साहब 2 साल से भी ज़्यादा शायद जेल में रहे, तो इन बिटवीन बेल का एप्लीकेशन आना लाजिम है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और अल्टीमेटली बेल मिला। तो बेल पिटीशन, समन्स, चैलेंजिंग एंड कस्टोडियल इंट्रोगेशन इशूज, इन सब पे जो है टाइम टू टाइम वेरियस पिटीशंस डाला गया और इस पिटीशंस में हमारे जजमेंट ऑर्डर आते गए। समन्स टू केजरीवाल एंड लीगल स्ट्रैटेजी, व्हेन अरविंद केजरीवाल वाज समन्ड, his legal approach included challenging summons, seeking protections from the coercive action and questioning legality of the ED actions. These triggered litigations before trial court, that is the Rouse Avenue Court, High Court and eventually the Supreme Court. आप सब जानते हैं। And arrest and immediate legal battle. Now Kejriwal was arrested on that time. Kejriwal was arrested by ED. After arrest, legal remedies invoked. उन्होंने क्या क्या लीगल रेमेडी लिया आप सब जानते हैं। नंबर 1, बेल एप्लीकेशन, इंटरिम रिलीफ प्रोटेक्शंस, एंड मेन की लीगल इशू whether the arrest under the PMLA followed due process, whether reasons to believe were valid, whether custodial interrogations was justified, and role of the High Court before the Delhi High Court. Petition challenge arrest and ED actions. Court examine case diary experts and ED material, and sometimes in sealed covered envelope and ground of arrest, इन सब विषयों पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब देखते हैं कि एक साधारण केस और एक पॉलिटिकल केस में क्या अंतर है, चूंकि पॉलिटिशियंस के पास वो मनी पावर होता है, वो पॉलिटिकल पावर होता है, तो लीगल की जो जितने सारे मैटर है वो सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। अब कि
उनके जो भी लॉ की लेकुनास है, प्रोविजंस है, उन सब को वहां पे वो काम में लाते हैं. The High Court generally does not conduct a full trial level scrutiny, focus on prima facie legality. Supreme Court interventions, the matter reached the Supreme Court of India. Supreme Court examined constitutional safeguard, Article 21, arrest procedures, compliance, balance between investigations and liberty, and the stage interim relief becomes crucial. Now, core legal issue, how courts grant stay without full records. इसमें हम लोग एक अलग वीडियो बना चुके हैं, उसमें डिस्कस किए हैं. आज भी थोड़ा बहुत उसमें डिस्कस करेंगे कि लीगल इशू जो है, हाउ कोर्ट्स ग्रांट स्टे विदाउट फुल रिकॉर्ड्स. तो नाउ very important in practice situations, and court says records not received yet grant stay, interim protections is the valid. Now already मैंने पिछला वीडियो में इस बारे में बताया कि आर्टिकल 226 में जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बेल पिटीशन, आपके एनेक्सचर, इम्प्यूड ऑर्डर, इन सब को देखते हुए अगर लगता है कि प्राइमा फेसी स्टे देने की जरूरत है तो स्टे दे सकता है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है. तो प्राइमा फेसी जुरिडिक्शन कोर्ट रिलाइज ऑन पिटिशंस, कमेंट, annexes, that is FIR, arrest memo, order copy, and urgency shown by the petitioners. Full lower court records is not mandatory at interim stage. Very clear? And doctrine of the irreparable injury is if no stay, liberty may be lost, arrest, detention continues, and reputations damage. यहाँ पे कुछ यूजर लोगों का भी सवाल है कि यहाँ अगर स्टे नहीं देता तो कौन से ऐसी इर्रिपरेबल लॉस सीबीआई को या ईडी को होता. ये तो क्या कहते हैं, रिलीफ जो है अरविंद केजरीवाल को मिला है, तो सीबीआई को इतनी कौन सी आ रही है. तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे सीबीआई ईडी जो लड़ रहे हैं आपके करप्शन चार्जेस के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, तो जहां पे करोड़ों करोड़ों का जो फंड एम्बेजलमेंट की बात हो, करप्शन की बात हो, तो अगर वो अपनी बात को नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी क्या है, केस को ही कंप्लीट रूप से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर उसको स्टे दे. और दूसरी बात है कि सीबीआई के ऊपर भी कमेंट किया था कि उनको जो है कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना है. तो ऐसे सिचुएशंस में अगर उनको स्टे नहीं देंगे तो फिर वो कैसे आगे काम करेंगे. तो इसीलिए हमारे जो फुल कोर्ट रिकॉर्ड इज नॉट मैंडेटरी एंड इंटरिम स्टेज में वो स्टे दे सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ इर्रिपरेबल इंजुरी, इफ नो स्टे, एंड लिबर्टी में बी लॉस्ट, अरेस्ट, डिटेंशन, एंड कंटिन्यूज reputations damage. Court act prevailing not reactively, balance of the connivance. Court ask will investigations collapse if stay is granted. अगर जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसी में क्या है कि अगर सीबीआई को वो मौका नहीं दिया जाए तो सीबीआई फिर केस को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे. केस जो है ट्रायल होने के पहले ही दम घोट दिया, केस खड़ा ही नहीं हो पाया, तो कोई एविडेंस जब तक आप उसको ट्रायल में नहीं ला जाएंगे, एविडेंस नहीं लाएंगे, एविडेंस नहीं आएगा, तो कैसे आपको सच्चाई पता चलेगा. तो विल इन्वेस्टिगेशंस कोलैप्स इफ स्टे इज ग्रांटेड, ये सवाल खड़ा होता है कि अगर स्टे ग्रांट कर दिया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कोलैप्स हो जाएगा. यूजुअली answer is no. And will individual suffer serious harm if not
अगर नहीं दिया जाता है तो किसी इंडिविजुअल को सीरियस हार्म होगा। ऑफन यस, यहाँ पे सीरियस इंजरी किसको होता? सीबीआई को होता, ईडी को होता। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 136 सुप्रीम कोर्ट, courts have wide discretionary power to grant interim protection, stay proceeding, modify coercive actions। तो हमारे कोर्ट को आर्टिकल 226 पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को 32 एंड 136 में इनफ पावर है, दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर है कि इंटरिम प्रोटेक्शन को ग्रांट करे, स्टे प्रोसीडिंग को ग्रांट करे, मॉडिफाई कोएर्सिव एक्शंस लिया जाए। एंड टिपिकली जो इंटरिम ऑर्डर स्ट्रक्चर है, इवन विदाउट रिकॉर्ड्स, कोर्ट्स पास ऑर्डर लाइक इशू नोटिस, कॉल फॉर रिकॉर्ड, टाइटल, नेक्स्ट डेट, no coercive steps shall be taken, and conditional temporary protection safeguard against the misuse. Courts protect against abuse by making stay time bound, requiring full disclosure, and vacating stay if facts suppressed। तो हमारे जो प्रैक्टिकल इशू है, प्रैक्टिकल इशू स्पेशली फॉर द एडवोकेट, हम लोग देखेंगे कि कोई भी लिटिगेशन, स्पेशली द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डिफामेशन, क्रिमिनल डिवीजन, टू ऑब्टेन स्टे, सो अर्जेंसी क्लियरली अटैच की डॉक्यूमेंट्स, एस्टैब्लिश प्राइमा फेसी illegality, to oppose stay, argue suppressions of facts, show no urgency, and emphasize the need of full records। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हम लोग का डिस्कशन रिगार्डिंग द अरविंद केजरीवाल केसेस, कैसे उनका केस स्टार्ट हुआ और आज तक उनके केस चलते जा रहा है। तो जब आप पॉलिटिकल पावर में रहेंगे तो आपके लिए केस लड़ना उतने मुश्किल की बात नहीं होगा। तो होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।